Assalamu alaikum everyone, this is Sapahat and welcome to my live session. So सबसे पहले I'm just going to go on different platforms and see who's live with me over there, and then I can come back and start with the session. So I'm feeling a lot better. Thanks for everyone who wished me good get well soon wishes. So I'm fine at the moment. And it's just, I guess, 1 minute is left till 7 p.m. So till it struck 7, I'll just go on different platforms and be back in a jiffy. Okay, so let's see. Let me refresh the windows on the other side and then I can start. Okay, yes, now I can see myself live, and let's see. Yes, here I am live. Okay, so the connection is slow. I don't know why, though it's just Saturday, and it has to be, the connection has to be good at least on weekends, but maybe the traffic is a bit a lot on weekends. So I'm sure you must have guessed what I plan to talk about today. So the topic is very clear, and I just decided to let it be clear as well. Okay, so you know what, actually there are a lot of things which I want to cover with you people, but आजकल जो है चूँकि scenarios ऐसे हैं, and social media, it's becoming more of people are becoming scared of social media for this very reason. So the topic which I plan to discuss today, it's about setting boundaries, especially those boundaries जो कि आपको social platform पे set करने की ज़रूरत है ड्यू टू वट एवर इज़ हैपनिंग ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स. और आजकल जो ज़्यादा चीज़ इन है दैट इज़ द लीक कल्चर regarding videos and private informations and many other things. So social platforms को पे अपने आप को आपने प्रोटेक्ट करना है. So today I'll be discussing some things which are necessary, and why I call it कि you have to set boundaries, क्योंकि boundaries are the only things which are going to prevent ourselves and anyone on social platform. Qazi Nadeem Ashraf, walaikum assalam. Thank you for joining and watching this session. So सबसे पहले तो okay, I might taking some breaks in between to catch up my breath due to the cough and the sneezing. So other than that I'm fine, so I can carry on with this session. So सबसे पहले तो आपने ये चीज़ you have to be very clear what is meant by leak culture. अब जब हम लीक कल्चर की बात करते हैं तो लीक कल्चर इज़ बेसिकली दोज अनऑथराइज्ड या प्राइवेट इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि लीक आउट हो जाती है. सो दिस इज़ जो आपकी लीक वीडियोस में आती है. जब लीक वीडियोस की बात करते हैं तो उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन विच अदर देन यूजुअल में जो आप शेयर कर रहे होते हैं, यू वुड नेवर वांट कि वो किसी और के पास जाए. बट देन लीक हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो लीक हो जाती है और वो लोगों तक जो है डिस्पर्स हो जाती है या कम्युनिकेट हो जाती है या डिसमिनेट हो जाती है. एंड इट कैन एनीवन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इट कैन बी अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ आप वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, या इट कैन इवन बी ब्रिज और ब्रिज ऑफ पुअर पासवर्ड्स जो आपने जो है लगाए होते हैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, या उनके जो पासवर्ड्स होती हैं तो वो भी लीक कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो एट स्टेक आ जाती है और लोगों तक पहुंच जाती है या लोगों को उसकी रसाई मिल जाती है. सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन लीक वीडियोस जब हम लीक वीडियोस की बात करते हैं. बट देन इन लीक वीडियोस को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट इज़ दैट थिंग जो कि लीक वीडियोस प्रिवेंट कर सकता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू सेट बाउंड्रीज. अब वो बाउंड्रीज जो है कई तरह की हो सकती हैं. उन बाउंड्रीज में what I'll talk about is the personal boundaries and the professional ethics or mental well-being. So ये जो है these are the most important boundaries जो कि किसी भी इंसान ने मेंटेन करनी होती है.
व्हेन इट कम्स टू सोशल प्लेटफॉर्म, या आपके कोई भी किसी किस्म की जो है वीडियोस है या इंफॉर्मेशन है उसको आपने किस तरह प्रोटेक्ट करना है. सो जब पर्सनल प्राइवेसी की हम बात करते हैं तो पर्सनल प्राइवेसी में यू हैव टू इंश्योर कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इंटैक्ट है, चाहे उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें या इवन इनफैक्ट प्राइमरी कोशिश यही करनी चाहिए कि जो आपकी प्राइवेसी या प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ना पड़ी हो. और उसमें जो है कुछ भी आ सकता है, उसमें आपके जो है पिक्चर्स आ सकती हैं, उसमें आपके जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन आ सकती है या डॉक्यूमेंटेशन आ सकती है. बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज यू नो इज सेफ. ख़ासतौर पर हम अगर ऑनलाइन बात करें तो ऑनलाइन में यू नेवर नो कि कब कौन सा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए. सो द मोर द प्लेटफॉर्म्स आर देयर, ठीक है हर एक के फायर वॉल्स होते हैं एंड एवरीथिंग, बट स्टिल एट टाइम्स जो है जो इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे किसी इंसान की हो या डिपार्टमेंट की हो या ऑर्गेनाइजेशन की हो, तो वो एट स्टेक आ जाती है ड्यू टू वीक फायर वॉल्स या कुछ भी हो सकता है. या इवन अगर जो है सिस्टम हैक हो जाए, या सिस्टम क्या सिर्फ एक आपका सिस्टम तो नहीं हैक होगा ना, ओवरऑल जो है यूनिवर्सली भी चीज़ें हैक हो जाती हैं. सो उसमें जो है इन ऑर्डर टू यू नो प्रिवेंट सच सिनेरियोज, जस्ट ट्राई कि आपके कोई भी पर्सनल या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे ना पड़ी हो कि जहाँ से अगर वो लीक कर जाए तो आपके लिए भी एक शर्मिंदगी का बाइस हो या एट स्टेक आ जाए. क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी अगर जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आउट हो जाए तो बहुत बहुत मुश्किल सूरत हाल पड़ जाती है. सो इन यू कांट लिसन काजी नदीम अशरफ, आई डोंट नो, मैंने तो जो है माइक लगाया हुआ है. सो कैन एनीवन एल्स लिसन टू मी? इज माय वॉइस ऑडिबल? Is there anyone else who can't listen to me? Let me just put on the mic again. Okay, am I audible? Cause I can't listen to myself. I'm not wearing any earphones. Okay, Naeem Akbar Sularia, you can listen, or am I inaudible? Okay, it's okay now. Okay, good. So I hope you must have captured what I was saying in the beginning. Did anyone capture what I was saying? So if you can just you know brief me up so I know आपने कहाँ तक सुना है ताकि I can continue further. Okay, you can listen now, but उससे पहले आपने कहाँ तक सुना था काजी नदीम अशरफ? आपने कहाँ तक सुना था? मैंने अब तक जो बात की है सारी वो आपने सुनी थी, कोई नहीं सुनी? ओके, सो आई जस्ट यू नो कंटिन्यू, और इन केस अगर जो है कोई सूरत हाल होती है तो यू नो आई कैन जस्ट रिपीट इट. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ये सबसे पहले तो ये कि आपने बाउंड्री सेट करनी है. अब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल बाउंड्रीज, आपके जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें आपने पर्सनल बाउंड्रीज मैनेज करनी है. बाउंड्रीज, जस्ट बाउंड्रीज सुने आपने? नईम अकबर सुलेरिया, येस आई एम बेटर टुडे. येस्टरडे ज़्यादा तबीयत ख़राब थी. आई हैव दिस फ्लू एंड कफ, सो बट नाउ टुडे आई एम बेटर. सो आई डिडंट वांट टू यू नो मिस दिस सेशन. आई वांटेड टू हैव दिस, अदरवाइज यू नो कि शाकिर बाल्टी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वालेकुम अस्सलाम. सो पर्सनल प्राइवेसी आपने अपनी मैनेज करनी है एंड इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, चाहे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, चाहे यू आर वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन तो उससे रिलेटेड आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपनी सेव की हुई है. सो आई एम टॉकिंग कि बहुत शुक्रिया नईम अकबर सुलेरिया. आई एम टॉकिंग कि भाई आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव करके रखना होता है एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें रखें. यू कैन ऑलवेज हैव इट इन अ हार्ड डिस्क या कोई स्टोरेज डिवाइस. सिर्फ वही इंफॉर्मेशन सोशल प्लेटफॉर्म पे रखें कि अगर वो किसी तरीके से जो है लीक हो जाती है, लीक भी किसी सेंस में हो सकती है, लीक जो है कोई वीक पासवर्ड है उससे लीक हो जाए, या कोई हैकर है जो कि सिस्टम में जो है हैक करके जो है आपके जो इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, या कोई भी सिनेरियो बन सकता है. सो ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर
कि आप अपने जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन ना रखें। एंड दिस इज़ रिगार्डिंग पर्सनल प्रिवेसी। जब हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं तो अगेन प्रोफेशनल एथिक्स में भी आपके जो है जब आप जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को विजिट करते हैं तो सर्टेन रूल्स होते हैं जिनके साथ आप एग्री करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि उन प्लेटफॉर्म्स में जो कंडीशंस होते हैं या एग्रीमेंट रूल्स होते हैं, ऑलवेज रीड दोज एग्रीमेंट्स एंड रूल्स। क्योंकि कोई भी जो साइट है या जो थर्ड पार्टीज एग्रीमेंट होता है उसमें कोई ऐसा आमतौर पे शेक नहीं होती कि हम आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। येस, टू मेक दी वेबसाइट्स बेटर और मेक दम वर्क इन अ बेटर पोजीशन, तो वो आपका जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, बट डाटा उस तरीके से पर्सनल डाटा मिसयूज़ नहीं किया जा सकता। मिसयूज़ जो है वही डाटा करेंगे जिन्होंने जो है जिनकी आपके साथ कोई बुगस होगी। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी एक्सटर्नल साइट्स और एनीथिंग, बट येस हर जगह पर जो है डाटा कलेक्ट हो रहा होता है एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना पर्सनल डाटा जो है वेबसाइट्स पे शोकास ना करें, ना ही शेयर करें। और प्रोफेशनल एथिक्स का भी यही तकाजा है कि आप जो है अपना जो प्रोफेशनल रिलेटेड काम है वो वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड ना करें। सो ऑलवेज हैव अ हार्ड डिस्क या कोई स्टोरेज डिवाइस आपके पास हो जो कि आपके जो है नॉट ऑन दी वेबसाइट सेव हो, बट ये है कि आपके अपने पास स्टोर हो कि आपको जब ज़रूरत पड़े आप उसको जो है कंसल्ट करें और फिर वापस उसी जगह पे सेव कर दें। अपने पर्सनल डाटा को ऑनलाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। बट देन अगर गॉड फॉरबिड कोई ऐसी सूरत हाल होती है, ये फ़र्ज़ करें आपके पास स्टोरेज डिवाइस नहीं होता और आप ये सोचते हैं कि ओके ठीक है ये वेबसाइट्स तो जो है दे आर वेल नोन और इधर तो जो है हैकिंग नहीं हो सकती और इनके तो अपने सर्वर्स है तो ये सब चीज़ें इधर जो है मेंटेन रहेंगी, तो देन अगर कोई डाटा डाल भी रहे हैं तो वो डाटा ऐसा ना हो कि अगर कल को वो लीक हो जाए तो तब भी आप किसी प्रॉब्लम में आ जाएं। सो आपको जो है जब भी आप डाटा डिसेमिनेट करें या शेयर करें लोगों के साथ, ऑलवेज हैव दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड कि अगर खुदा न खास्ता ये जो है डाटा लीक हो गया तो इससे जो है हम या हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी जो है मुश्किल सिचुएशन में आ जाएगी या मे बी जो है सिक्योरिटी जो है एट जो है स्टेक आ जाएगी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने डाटा की खुद हिफाजत करनी है एंड एवरी वन ऑफ अस हैव दिस मॉरल कॉन्शियस। और जिनमें नहीं भी मॉरल कॉन्शियस होता तो वो भी जो है थोड़ा सोच लें, क्योंकि वट एवर यू डू इट कम्स बैक टू यू। अगर आप अपने मॉरल्स को एट स्टेक रख रहे हैं या यू आर नॉट अबाइडिंग बाय योर वैल्यू सिस्टम, तो जो किसी वैसे भी ये तो आम फहम की बात है कि जो किसी और के लिए घड़ा खोदता है इवेंचुअली वो उस घड़े में खुद भी गिरता है। सो व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल एथिक्स आप इस तरीके से बाउंड्रीज अपनी मेंटेन कर सकते हैं। एंड देन व्हेन इट कम्स टू मेंटल वेल बीइंग, तो यू हैव टू कीप योर मेंटल हेल्थ एट द प्राइमरी लेवल। फोकस आपका जो है अपने मेंटल हेल्थ पे होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है आप अपने मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उतना ही आपके लिए इट वोंट बी समथिंग गुड और आप जो है स्ट्रेस में जाते जाएंगे। सो यू हैव टू प्रिवेंट योर मेंटल हेल्थ एज वेल। और मेंटल हेल्थ जो है इट्स नॉट जस्ट कि भाई आपकी मेंटल हेल्थ कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लाइक अगर हम जो है यंगस्टर्स को देखें तो दे आर नॉट मेच्योर इनफ कि वो हर तरह का कंटेंट जो है एब्जॉर्ब कर सकें। सो अगर उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन करनी है तो दे हैव टू स्टॉप इन टेकिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करे। एंड देन एज मेच्योर पर्सनस भी जो है बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट ऐसा होता है जो एज एडल्ट्स हम भी नहीं हजम कर सकते समथिंग, क्योंकि हर कंटेंट हर एक लिए नहीं होता, हर वीडियो हर एक लिए नहीं होती। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ एज वेल। अशोक कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। सो दिस इज़ वन थिंग। अच्छा, फिर अगर हम जो है सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया ये जो सारे जो है लीक वगैरह हो रही होती है या ब्रीचेस हो रहे होते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन की या प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन की या एथिक्स के हवाले से, तो ये किस तरीके से जो है सोशल मीडिया किस तरह मैग्नीफाई करते हैं इन ब्रीचेस को। तो सोशल प्लेटफॉर्म सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि इट ऑलवेज एक्ट एज एम्पलीफायर
फॉर लीक्ड कंटेंट, क्योंकि एम्पलीफायर का क्या काम होता है कि हर चीज़ को जो है बढ़ा चढ़ा कर जो है पेश करना। सोशल मीडिया पे भी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, ख़ासतौर पे जो लीक कंटेंट होता है वो एम्पलीफाई होकर जो है ना पेश किया जा रहा होता है। हो सकता है कि उस लीक कंटेंट में कोई ऐसी चीज़ ना हो, बट देन जितने मुंह उतनी बातें, उस लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड फॉर्म हमारे सामने आती है। एंड देन इट ऑल डिपेंड्स कि हम उसे किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस एज ब्रैकेट के हैं। अगर यंगस्टर है तो यंगस्टर जो है उसको ज़्यादा हसास होंगे, या ज़्यादा जो है एग्जैजुरेटेड फॉर्म उन्हें जो है ज़्यादा तरीके से जो है इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि दे डोंट नो कि भाई ये जो डाटा हम तक आ रहा है या ये जो ब्रीच है इसमें कितनी जो है सेंस है, कितना लॉजिक है, या कितनी ये रियल है। सो दे वुड बी एक्टिंग मोर इन अ रिएक्टिव वे। सो वो इम्पल्सिवली उन चीज़ों को परसीव कर रहे होंगे। जबकि अगर मेच्योर साइड पे मेच्योर लोगों की बात करें तो दे नो कि भाई हर चीज़ का जो है एक लेवल होता है। if you get into अगर if you are a researcher तो you will always go and research कि भाई इस चीज़ में कितने जो है कितने परसेंट जो है सच्चाई है, कितना परसेंट झूठ है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव इट जो भी आपके सामने आ रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से परसीव करें। हर इंसान अपने लेवल के लिहाज से परसीव करता है। अच्छा अशोक कुमार, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और नईम आप क्या कह रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, मेडिसिन लें और अगर सेहत इजाज़त दें तो इट्स ओके, इट्स फाइन, आई एम फाइन। मैंने जो है मेडिसिन ली हुई हैं एंड आई एम इन पोजिशन टू कैरी ऑन विद दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। उज़ैर आबिद, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एज वेल। सो आपने जो है ना ये चीज़ देखनी होती है कि भाई आपको जो एम्पलीफाई करके जो है सोशल मीडिया पे जो ब्रीचेस हैं वो आप तक किस तरह पहुंच रहे हैं और आप उसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। देन आपने जो है ना, आप अक्सर देखेंगे कि सोशल मीडिया पे और भी बहुत सी चीज़ें जो कि एम्पलीफाई होकर पेश होती हैं। नाउ द अदर डे आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इस वक्त जो है सिनेरियो क्या है कि people want to get on social platforms and they are focusing on the trends. Now अगर जो है हम सिर्फ यही सोच लें कि भाई rather than focusing on trends, जो हमारी जो है strengths हैं या जो हमारे expertise है, why shouldn't we focus on those things rather than focusing on trends? ट्रेंड्स पे लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि दे वांट व्यूअरशिप, दे वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हो, लोग उनकी वीडियोस देखें, वो क्या कह रहे हैं उन ट्रेंड्स के हवाले से और वो उनको किस तरह फॉलो कर रहे हैं। बट देन यू नो व्हाट, हर एक ट्रेंड ऐसा नहीं होता कि आप उसको फॉलो करें। अगर आज जो है लोग डिफरेंट जो है मर्डर्स की या साइबर सिक्योरिटी की या साइबर लीक की या लीक कल्चर्स की बात कर रहे हैं, तो नॉट एवरी ट्रेंड इज़ वर्थ डिस्कसिंग। आपने जो है अगर ट्रेंड्स फॉलो भी करने हैं तो अच्छे ट्रेंड्स को फॉलो करें, वो ट्रेंड्स फॉलो करें जिससे लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो रही हो। अगर आप कोई ऐसा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जिससे जो है लोगों की ज़िंदगी में अच्छाई की तरफ तो इजाफा नहीं हो रहा, बट येस नेगेटिविटी बहुत उनकी लाइफ में इजाफा करी है। मसलन when we talk about leak videos या when we talk about crime scenes या crime reports, तो उससे जो है लोगों की प्रोडक्टिविटी लेवल नहीं इंक्रीज होता, रादर उनके जहन में जो है बहुत सी मेंटली तौर पे जो है जो ऑलरेडी डिसऑर्डर्ड माइंड है या मेंटली मेंटल इलनेस का शिकार है, तो वो इस तरह के जो प्रोग्राम्स है या ट्रेंड्स है या वीडियोस है वो देखकर मज़ीद जो है उसके जहन में और जो है नेगेटिव चीज़ें आएंगी। ऑन द अदर हैंड अगर कोई माइंड जो है मेंटली तौर पे स्टेबल है, वो जब ये चीज़ें देखेगा तो देन दैट माइंड इज़ गोइंग टू बी डिप्रेस्ड कि भाई ये किस तरह की जो है चीज़ें पेश हो रही हैं और ये क्या कुछ चल रहा है दुनिया में। ओके, इट्स राइट, इट्स नॉट रॉन्ग कि भाई आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। ये आप जो है आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। यू कांट से कि द होल वर्ल्ड इज़ अ प्रिटी प्लेस, इट्स अ बेड ऑफ रोजेज और यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो सकता। यू हैव टू नो अ बिट अबाउट रियलिटी, बट देन उस रियलिटी को आप किस तरह पेश करें दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। सो
दैट्स व्हाई आई से कि भाई सोशल मीडिया चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है, एग्जैजुरेट कर देता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनमें शायद जो है कोई दम ना हो, बट यह है कि उनको जिस तरह पेश किया जाता है वो बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करती हैं. एंड देन एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन माइंड्स एंड देयर ओन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग थिंग्स. सो ट्रेंड्स आप वो फॉलो करें जो कि किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे. यस, आप अगर जो है क्राइम रिपोर्ट्स कर रहे हैं या आप जो है मर्डर केसेस के बारे में बता रहे हैं, तो उससे जो है आगाही होगी, अवेयरनेस के लिए वो वीडियोस क्रिएट करें. पर वो वीडियोस अगर आप इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि उसमें जो है इंगेजमेंट ज़्यादा होगी, व्यूअरशिप ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा आएंगे, तो उसमें जो है वही लोग ज़्यादा आपको नज़र आएंगे जिनके ऑलरेडी मेंटल तौर पे कोई इलनेस चल रही है, और वो उस इलनेस को हाईलाइट कर देगा. So, before making any kind of video, you have to put yourself into people's shoes. जब तक आप अपने आप को किसी और के जूतों में प्लेस नहीं करेंगे, जूतों में प्लेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के जूते में जाकर बैठ जाएं. इट्स अ प्रोवर्ब एंड इट्स यूज्ड फॉर द थिंग कि भाई इफ़ यू वांट टू नो कि भाई दूसरे पे आपकी बात का क्या असर हो रहा है, तो प्लेस योर सेल्फ इन द अदर पर्सनस प्लेस. क्योंकि जब आप अपने आप को किसी और की जगह रख कर सोचते हैं, चाहे आप एज अ इंडिविजुअल सोच रहे हो, चाहे आप एज अ पेरेंट सोच रहे हो, या चाहे आप जो है एज अ मेंटली इल पर्सन सोच रहे हो, तो यू हैव टू सी कि आप जो भी वीडियो बना रहे हैं या आप जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसका जो है एट द अदर एंड किसी भी इंसान की लाइफ में क्या असर हो रहा है. सो ऑलवेज गो फॉर वीडियोज, यू ऑलवेज सेलेक्ट टॉपिक्स जो लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सकें. डोंट गो आफ्टर ट्रेंड्स. बुशरा, thank you so much for joining and watching. So this is one of the things कि सोशल मीडिया जो है जो टॉपिक्स होते हैं या जो ट्रेंड्स होते हैं उसको किस तरह एम्पलीफाई कर देते हैं. नाउ इट कैन बी बोथ वेज, इट कैन बी इन द पॉजिटिव वे एंड इट कैन बी इन द नेगेटिव वे. एंड देन इट ऑल डिपेंड्स कि जो लोग उसको शो कास्ट कर रहे हैं, जो जो क्रिएटर्स हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, या उस सोशल मीडिया पे जो है सेशंस करते हैं, या काउंसलर्स हैं. सो एवरीवन हैव देयर ओन रोल टू प्ले, एंड इफ दे वांट टू डू समथिंग गुड इनटू पीपल्स लाइफ, तो देन दे हैव टू सी कि भाई ये टॉपिक डिस्कस करने से क्या अवेयरनेस आएगी या इससे जो है नेगेटिव ट्रेंड पर बढ़ेगा. So this is another thing which we have to keep in mind when we are on social platforms. And this also determines कि भाई हमारी बाउंड्रीज क्या हैं और हमने कौन सी बाउंड्रीज फॉलो करनी है. अच्छा, देन देर आर सर्टन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो कि आप बाउंड्रीज पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेटिंग बाउंड्रीज. उसमें सबसे पहली चीज़ ये है, यू हैव टू एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं डिजिटल हाइजीन. और वो डिजिटल हाइजीन क्या होती है कि उसमें जो है यू हैव टू मैनेज योर प्राइवेसी. आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स क्या हैं? प्राइवेसी सेटिंग्स में लाइक इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम मैनेजिंग योर पासवर्ड. अकाउंट्स के जो भी पासवर्ड्स हैं, दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, नॉट वीक. क्योंकि आपका पासवर्ड अगर वीक होगा, तो वीक पासवर्ड्स कौन से होते हैं? जिसमें आपने अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली होती है, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या चाहे आपके जो है किसी भी जो है पेरेंट का जो है नेम हो ना. दीज आर वीक पासवर्ड्स, और ये पासवर्ड्स कभी भी हाईजैक हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी जो है ट्रेस कर सकता है आप कब पैदा हुए, या आपके पेरेंट्स जो है कब पैदा हुए, या आपके पेरेंट्स का क्या नाम है. क्योंकि एट टाइम्स आप ये चीज़ नोट करेंगे कि व्हेन यू आर ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड पीपल कॉन्टैक्ट विद यू, तो 2-3 सवालों बाद जो है वो आपसे जो है ना एक खुलासा ले रहे होते हैं. और आप ये ऑब्जर्व करेंगे, every third person you talk to, they would be focusing on knowing more about you. आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई आप जो है कब पैदा हुए थे, आपकी एजुकेशन कहाँ की है, आपने क्या किया हुआ है, आपके कितने सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ होते हैं, या अगर इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन तो आपके हस्बैंड का क्या नाम है, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं. सो दिस इज़ डोंट एवर थिंक कि भाई दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, जो कि आम लोग जो है पूछेंगे. नो, ये सारी चीज़ें वही लोग पूछेंगे हु आर इंटरेस्टेड इन ब्रीचिंग योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन. क्योंकि
सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जब आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करेंगे, नाउ दिस इज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना, लाइक इफ़ यू हैव जस्ट मेट अ पर्सन ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म, अब उसको क्या लगे कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, आपके कितने बहन भाई हैं, आपके माँ बाप कौन हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक है, या आपके मियाँ क्या करते हैं, उनको क्या लगेगा, उन्हें आपकी पर्सनल लाइफ में क्या इंटरेस्ट होगा। तो द थिंग इज कि everyone on social platform, not everyone but those people who have some incentive, some thing at the back of their mind, जो किसी किस्म का ब्रीच कॉज करना चाहते हैं, वो आपसे ये पर्सनल इंफॉर्मेशन ड्रॉ करवाएंगे, और आप जो है अपने भोलेपन में या बड़े बोलेपन में, या इसको आप जो भी कह लें, मैं तो इसको कहूँगी शेयर स्टुपिडिटी में, आप लोगों को ये चीज़ें बता देंगे। क्योंकि इफ़ यू आर अ गुड पर्सन तो यू विल थिंक कि भाई बाकी सारे भी जो है मेरी तरह अच्छे होंगे। बट सोशल प्लेटफॉर्म अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स इट हैज़ बिकम यू नो अ प्लेस ऑफ हॉरर। यहाँ पर हर तरह के आपको लोग मिलते हैं, और यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। yes, there was a time जब आप ट्रस्ट कर सकते थे, but now is not the time. Now you have to keep your information sacred, और वो information sacred इसी तरह रहेगी कि when you don't bluff up everything to the other person, क्योंकि you don't know how how honest that person is, how truthful that person is। बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन रखने वाले या अच्छे अच्छे बैकग्राउंड रखने वाले, they can also come out to be very negative and very scary kind of people. So you have to be careful on the social platform. आपको कोई बेशक कहता रहे कि जी मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, आई एम वेरी cordial, आई एम वेरी फ्रेंडली, बट यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। ये जो ब्रेन हमारे इसमें सर के बालों के नीचे है ना, वी नीड टू यूज़ इट, क्योंकि नाउ इट्स नॉट अ गुड वर्ड, अब नहीं रहा। अब यू हैव टू ट्रस्ट योर गट्स, यू हैव टू ट्रस्ट ओवर द ईयर्स जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, because there are so many examples of so many people who have been drawn into this trap कि भाई आपको लोग जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे जो है मिलते हैं, और आप उनके साथ सब कुछ शेयर कर देते हैं, एंड देन वो सिर्फ अपने छोटे से मफाद के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। सो वाई आप अपने आप को क्यों इस डेंजर में डाल रहे हैं, आप अपनी लाइफ को क्यों अपने लाइफ से ज़्यादा अपनी फैमिली को क्यों एट स्टेक रखें। सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी कि भाई यू हैव टू हैव डिजिटल हाइजीन, चाहे उसमें आपका पासवर्ड हो, चाहे उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, एंड देन ओवर शेयरिंग, डोंट ओवर शेयर ऑनलाइन। सजाद रसूल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो जब आप ओवर शेयरिंग करते हैं ना, ओवर शेयरिंग में क्या होता है, ओवर शेयरिंग में जो हम टिकटॉक पे देखते हैं कि भाई आप जो है बैठे हुए हो, जी ये मेरा सुबह है, अब मैं सुबह के टाइम ये नाश्ता कर रही हूँ, या अब मैं जो हूँ ये काम कर रही हूँ, अब मेरा जो है दिन स्टार्ट हो गया है, तो दिन स्टार्ट में अब मैं ये करूँगी। यानी वो छोटी छोटी चीज़ें, वो शायद छोटी छोटी चीज़ें आप यानी अपने घर वालों से भी शेयर करने की जहमत नहीं करते, उनको भी आप ये करते हैं बस मैं काम कर रही हूँ। बट ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी क्यों ज़रूरी है, उसमें जो है आपकी क्या नीड है, उसमें बैक ऑफ द माइंड आपकी ये है कि यू वांट वैलिडेशन। व्हाई डू यू वांट वैलिडेशन? क्या आपके लिए घर वालों की एक्नॉलेजमेंट काफ़ी नहीं है? डू यू हैव टू व्हाट आर यू पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म्स? You have to set boundaries. सोशल प्लेटफॉर्म को किस तरह यूज़ करना है, अगर से इफ़ यू आर अ सोशल पर्सन या आपका जो है ज़्यादा काम सोशल मीडिया पे है, तो देन आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए। ओके, आई एम यूजिंग सोशल प्लेटफॉर्म, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं सोशल प्लेटफॉर्म सिर्फ अपनी सर्विसेज को शोकास करने के लिए करती हूँ, या वो चीज़ें जो कि मैं कर सकती हूँ मैं उनको हाईलाइट करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ। सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन अवेलिंग माई सर्विसेज, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिहाज से हो, डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से हो, कंटेंट राइटिंग के हवाले से हो, कॉपी राइटिंग के हवाले से हो, एंड देन देयर आर सो मेनी स्किल्स, आई डोंट जस्ट want to tell them over here, but yes, this is my maqsad of using these social platforms, and then when I come live I want to share my knowledge, और ये वो knowledge है तो जो over the years I have gained,
जो लाइफ ने मुझे सिखाया है, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस ने सिखाया है, जो पर्सनल इंसाइट्स ने सिखाया है, जो आप जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके मैंने गेन किया है, एंड आई एम इन दैट पोजिशन कि आई एम एबल टू शेयर दिस नॉलेज ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। मेरा तो अपने लाइफ में फ़ायदा होता है क्योंकि मैं उसको अपनी लाइफ में तो अप्लाई करती हूँ, बट नाउ आई एम ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, आई वांट कि वो लोग जो अब सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं या इस पे काम करना चाहते हैं, हाउ आर दे सपोज टू कैरी आउट देमसेल्व्स। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉन्शियसली होकर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। जितना ज़्यादा आप सोशल प्लेटफॉर्म्स को अपने नफ्सियात पे सवार कर लेंगे या टिकटॉक वाला सोशल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा जो है आप फील करेंगे कि आप एक दलदल में ना धंसते जा रहे हैं। तो नो वन वांट्स टू गेट इनटू दलदल। अब वो चाहे दलदल हो या चाहे वो जो है लोगों का नेटवर्क हो जो कि एक दलदल की फॉर्म में हो, सो नो वन वांट्स टू बी एट दैट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड। सो दैट्स वाई आई टेल यू अगेन एंड अगेन कि भाई ये अगर आपने अपनी बाउंड्री सेट ना की ख़ासतौर पे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप इस दलदल में धंसते चले जाएंगे। अच्छा, देन उसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, यू हैव टू बी सिलेक्टिव इन शेयरिंग। जो आप शेयर करेंगे हैं उसमें भी आपको सिलेक्टिव होना चाहिए। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि यू डोंट हैव टू शेयर एवरीथिंग कि भाई ये मेरा सुबह का नाश्ता है, ये दोपहर का खाना है या रात का खाना है। वाई डू यू हैव टू शेयर? उसकी क्या नीड है? अच्छा चलो, अगर शेयर करना भी है तो हल्का फुल्का कर दो और सिर्फ वो चीज़ शेयर करो कि भाई आप अपने अगर रेगुलर रूटीन में ये चीज़ खाएंगे। अगर आप ये शेयर कर देते हो कि भाई अगर आप जो है एक ग्लास दूध का पिए विच इज़ ऑर्गेनिक मिल्क, तो दिस इज़ गुड फॉर योर बोन्स। नाउ इसमें कोई जो है वजह नहीं आ रहा, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं टू शो ऑफ कि हाँ जी देखो हम दूध पी रहे हैं, तो वो भी ये प्रेजर्वेटिव डब्बे वाला दूध पी रहे हैं, या ये जो है बाहर का कोई आया हुआ दूध है, मेड इन कनाडा है या मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, तो ये वाला हम दूध पी रहे हैं। यू आर शोइंग ऑफ, यू डोंट हैव टू शो ऑफ। आप लोगों की हेल्थ पे बात करना चाह रहे हैं ना, आप ये फोकस करना चाह रहे हैं कि बी यू हैव टू मैनेज योर हेल्थ, तो उसमें आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ये खुला दूध है, ये खुला दूध पियो। खुला दूध तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो चीज़ जो कि आपको डब्बे के दूध में नहीं मिलती वो खुले दूध में मिलती है। तो अपने लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करो ना, अगर करना ही है तो। वैसे भी अगर आप प्रमोट नहीं भी करते तो खुला दूध पीना वैसे ही अच्छा है, चाहे आप गाय का पियो या भैंस का पियो, दोनों में से जो सा आपको अच्छा लगता है आप पियो, पर ये ऑर्गेनिक पियो, ना कि जो है आर्टिफिशियल दूध की तरफ जाओ जो कि प्रेजर्वेटिव से भरा हुआ है, जिसका टेस्ट तो शायद आपको खुले दूध से ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि खुले दूध में एक ख़ास स्मेल होती है जो कि बहुत से लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। बट यू नो व्हाट, मैं तो खुला दूध लेकर उसमें 2 इलायची डाल लेती हूँ, तो वो इलायची की स्मेल उससे जो है ना थोड़े वो दब जाता है। बट देन अगर आपने सेहत को देखना है तो फिर आप स्मेल को नहीं देखेंगे, और अगर आप स्मेल को देखेंगे तो फिर आप सेहत को छोड़ दें। So this is regarding what you have to be selective in sharing. तो शेयर गुड थिंग्स रादर देन शेयरिंग थिंग्स जो कि आप कुछ शो ऑफ कर सकते हैं। शो ऑफ वाली चीज़ें जो है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर ना ही करें तो बेहतर है। परविशा फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वाकिफ मुल्तानी, वालेकुम अस्सलाम। एंड सजाद रसूल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा, फिर इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, यू हैव टू मैनेज प्रोफेशनल सेफ गार्ड्स। और वो प्रोफेशनल सेफ गार्ड्स क्या है कि ऑलवेज ट्राई टू यूज सिक्योर चैनल्स। अगर आपने कम्युनिकेशन भी करनी है ना तो सिक्योर चैनल्स पे जाकर करें। बस बास लोगों का मैंने देखा है वो फेसबुक मैसेंजर पे बहुत ज़्यादा जो है शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एंड देन देयर आर सर्टेन पीपल जो कि फेसबुक पे होते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये जो है ना टोटल जो है टाइम वेस्टर है, पर वो आपसे कहेंगे जी आप अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दें। अब आप उन्हें व्हाट्सएप का नंबर किस तरह दे दें? आपको पता है कि वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। अब इतना वेला टाइम तो होता नहीं है, ना आपके पास होगा ना मेरे पास होगा। सो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ऑलवेज हैव अ बिजनेस नंबर। और वो बिजनेस नंबर, देखिए बिजनेस नंबर क्यों होता है कि अगर आपने किसी से बिजनेस रिलेटेड बात भी करनी है तो वो नंबर शेयर करते हैं। अगर आप किसी से अपना पर्सनल नंबर शेयर करेंगे, अगेन वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आपका एक पर्सनल नंबर है ना। पर्सनल नंबर तो आपने अपने फैमिली वालों के लिए जो है रखा होता है या अपने फ्रेंड्स के लिए रखा होता है। इट्स
it's not for everyone. You cannot give your personal number to everyone. So again वो भी एक breach हो जाती है. So always have a business number, and it's always better to use secure lines या secure channels जहाँ पर जो है आप जो है सिक्योरली बात कर सकें, प्रोफेशनल बात. मैं ये बिल्कुल नहीं इस हक में कि जिन लोगों का आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आ गया या आपका टाइम वेस्ट करेंगे या ऐसे ही आपको जो है बातों में लगा लेंगे और उन बातों का एट दी एंड कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उनको अपना बिजनेस नंबर भी देने की ज़रूरत नहीं है. उनको फेसबुक पे ही रखें, उसके मैसेंजर में ही रखें, और उनसे ज़्यादा जो है हाय हेलो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. काजी नदीम अशरफ आप कह रहे हैं डिपेंड्स इफ़ यू गेट प्योर मिल्क. यस, इट रियली डिपेंड्स इफ़ यू गेट प्योर मिल्क, बट देन यू नो शॉप्स. आई नो सर्टन शॉप्स इन इस्लामाबाद जहाँ पर अच्छा दूध मिलता है. सो आई डू आई गेट मिल्क फ्रॉम देयर, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अच्छा, देन जो है इसमें मज़ीद अगर बात करें बाउंड्रीज़ की, तो यू हैव टू हैव एथिक्स इन कंटेंट शेयरिंग. अब एथिक्स में भी अगेन वही है कि हर तरह का आप कंटेंट शेयर नहीं कर सकते. आपको वही कंटेंट शेयर करना है जिसमें कोई वैल्यू हो. अगर कोई आप ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं जिसमें गाने हैं, जिसमें डांसेस हैं, जिसमें वल्गैरिटी है, या जिसमें ऐसा कंटेंट है जो कि दिमाग ख़राब करने वाला है, तो दैट्स नॉट एथिकल. सो ऑलवेज गो फॉर इथिकल कंटेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जो है इथिकल शेयरिंग करेंगे, या इवन अगर आप पोस्ट भी बना रहे हैं, पोस्ट में भी आप जो है इथिकली जो है चीज़ें जो है हाईलाइट करें. अगर कोई आप रिलीजियस बात कर रहे हैं तो you can always share a quote of a person, और उसके साथ जो है कोई अच्छी डिसेंट इमेज जो है लगा दें, rather than कोई वल्गर इमेज लगाएं. या खैर रिलीजियस कोट्स के साथ तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप नेचर की इमेज ही जो है डिस्प्ले करें, rather than उसके साथ जो है किसी का मुंह शेयर कर दें या समथिंग लाइक दैट. सो द कंटेंट हैज़ टू बी इथिकल. अच्छा, देन इसमें सोशल बाउंड्रीज़ में एक और जो चीज़ है, इट्स द रोल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एम्पलीफाई होकर पेश की जाती हैं, और जो एम्पलीफाई का जो इफ़ेक्ट होता है वो ऑन दी अदर हैंड जो है एट टाइम्स इट्स नॉट इन अ पॉजिटिव वे, वो ज़्यादा एग्जैजुरेटेड होता है. सो सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी इंसान ही यूज़ करते हैं. सोशल प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली खुद तो नहीं अपने आप को यूज़ कर रहे होते ना. सो आप जो कुछ भी उधर जो है डिसेमिनेट करेंगे, इट हैज़ टू बी इथिकल, and you have to be an ethical person as well, because you are, most of us are living in a Muslim society, और as a Muslim ये वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है कि whatever we are sharing, क्योंकि the more good it is, it's going to come back to us. और अगर if it's negative, तो देखें एक ना वर्ड है मकाफात अमल, जो कुछ आप करते हैं ना, इट कम्स बैक टू यू. अगर आप जो है ये सोचते हुए कि भाई मुझे अगर मैं ये कंटेंट यूज़ करूँगी तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ेगी या बहुत ज़्यादा मुझे जो है फॉलोअर्स मिलेंगे, तो हो सकता है उससे आपको वो सब कुछ मिल जाए. बट अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये सोच लें कि भाई ये चीज़ शेयर करके मुझे ये सब कुछ मिल तो जाएगा, बट क्या मैं एज अ मदर ये चाहूँगी कि कल को मेरे बच्चे भी यही कुछ करें और आगे जो है उनको जो है ये सिनेरियो फेस करना पड़े. सो जब आप ये चीज़ सोचेंगे ना, तो यू विल नेवर गो फॉर द अनएथिकल कंटेंट. यू विल ऑलवेज गो फॉर थिंग्स जो कि लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें. अगर किसी का बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो भी उस कंटेंट को देख कर उसको भी सबक मिले कि भाई मैंने इस डायरेक्शन में नहीं जाना, बल्कि एज अ मुस्लिम या एज अ कल्चर पर्सन या एज अ कल्चर सिटीज़न, या मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, तो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें नहीं सिखाई गई. दीज आर नॉट इन आर ट्रेनिंग, या हमारे जो है कल्चर का हिस्सा नहीं है, तो वो चीज़ें कभी नहीं करेंगे. सो दिस इज़ हाउ you build or train your generations. And then what, आपको जो है ना एक कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट भी बिल्ड करने की ज़रूरत होती है. इट्स नॉट दैट कि जस्ट आप जो है चीज़ें शेयर कर रही हैं और यू आर गेटिंग अदर थिंग्स इन रिटर्न, बट जब आप जो है लोगों के कल्चर्स को रिस्पेक्ट करते हैं तो इट कम्स टू यू ऑटोमेटिकली. नाउ इट डज़ नॉट मैटर कि आप हर वक्त जो है
लाइक येस, इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान तो आप अपना कल्चर शेयर कर रही हैं, बट येट एट द सेम टाइम अगर कोई अपना कल्चर भी शेयर कर रहा है तो यू डोंट बिकम अ फिक्सेटेड पर्सन, या आप जो है उस पर जो है हमला नहीं कर दोगे, जो आमतौर पे लोग हमले कर देते हैं लोगों के ऊपर, उन पर रख कर बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर एक का अपना कल्चर होता है, अपनी वैल्यूज़ होती हैं, अपना सिस्टम होता है। आप लोगों के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, यू डोंट यू नो फायर ऑन देम कि भाई ये आपका कैसा कल्चर है, ये आपका कैसा सिस्टम है। जिसको आपका कल्चर अच्छा लगेगा ना, वो ऑटोमेटिकली जो है आपका कल्चर अडॉप्ट कर लेगा। आपको ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है किसी को अपना कल्चर एनफोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। बट देन अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को जो है करवाना चाहते हैं तो उसका जो है जो नतीजा होगा, पीपल आर नॉट गोइंग टू रिपोर्ट, रादर वो आपका जो कल्चर है उसको भी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। दिल थिंक कि भाई ये कोई कल्चर है जो कि फोर्सफुली इन पे अप्लाई किया गया है और ये खुशी खुशी उसको अडॉप्ट नहीं करे। सो आपने किसी को जो है ये जो है इम्प्रेशन ही देना कि भाई आपका कोई फोर्सफुल कल्चर है। सो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स कल्चर, और उनकी भी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, उसको भी आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इसी तरीके से म्यूचुअली एक कोलैबोरेशन जो है बिल्ड हो सकती है। व्हेन यू नो रिस्पेक्ट अदर पीपल्स कल्चर तो वो आपका भी कल्चर रिस्पेक्ट करेंगे। पर अगर आप किसी पे थोपने की कोशिश करेंगे अपने कल्चर को या अपनी वैल्यूज़ को, तो वो उसको जो है इन अ गुड वे नहीं लेंगे, उसको ज़्यादा डेरोगेटरी लेंगे। ओके, काजी नदीम अशरफ आप कह रहे हैं गुड गाइडेंस टू यूज सोशल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। ओके, आई होप दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट, या आप कुछ मुझे पॉइंट बता रहे थे। सो ओके, सो अगर मैं जो हूँ किसी का कोई पॉइंट मिस कर जाऊँ या कोई मेरे से जो है कोई ब्लंडर हो जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर द सिंपल रीज़न कि ज़ुकाम की वजह से आई एम नॉट 100%, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी यू नो अलर्ट एंड आई एम ट्राइंग कि भाई मैं किसी का कोई पॉइंट स्किप ना कर जाऊँ। और जो मैं कहना चाह रही हूँ वो भी कह रही हूँ। ओके देन यू नो व्हाट, इसमें जो है एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ना, दैट इज़ कि यू नो वी ऑल नीड टू हैव सर्टन फ्रेमवर्क, सर्टन लीगल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी। क्योंकि अगर जो है हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क्स नहीं होंगे, हमारे पास पॉलिसीज़ नहीं होंगे, तो वी कैन नॉट यू नो प्रिवेंट आवर सेल्फ ऑन दीज सोशल प्लेटफॉर्म्स। और बाउंड्रीज भी सेट करने के लिए वी नीड दीज पॉलिसीज़। नाउ हम आए दिन अगर किसी भी नई वेबसाइट पे जो है लॉग इन करते हैं या कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, एंड देन वी साइन अप दोज पॉलिसीज़। बट देन अगेन एंड अगेन आई से कि भाई अल्लाह ने जो आपको भेजा दिया है उसको यूज़ करें, लोगों की जो पॉलिसीज़ हैं उनको पढ़ें, उनको देखें कि वो आपका डाटा किस तरह यूज़ करेंगे। मोस्टली तो यही लिखा होता है कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज योर पर्सनल डाटा, इट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन या इट्स जस्ट फॉर रिकॉर्ड। सो इसीलिए अब जो है जितनी वेबसाइट्स बन रही हैं उसमें जो इंटरनेशनली जो है प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि आपकी प्राइवेट पॉलिसी हो या आपके जो है कंडीशंस हो, प्राइवेट पॉलिसी हो, या इवन अगर कॉपीराइट की भी पॉलिसी है तो आपकी पॉलिसीज़ बनी हो, फिर उन्हीं पॉलिसीज़ पे जो है आपकी वेबसाइट्स अप्रूव होती हैं। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने जो है ना, चूँकि यू आर लिविंग इन एन इस्लामिक कंट्री, तो आपकी पॉलिसी उसी लिहाज से होगी। अगर आपकी वेबसाइट भी किसी के जो है कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आप किस लिए यूज़ करेंगे, आप इसको जो है जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पजेज यूज़ करेंगे या आपने जो है अपने जो सिस्टम है या मॉडल है उसको बेहतर बनाने के लिए यूज़ करना है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। और यही बाकी साइट्स जो थर्ड पार्टी साइट्स होती हैं उनका भी यही आमतौर पर मकसद होता है कि वो आपका डाटा कलेक्ट करे होते हैं ताकि वो अपना जो मॉडल जो भी उन्होंने डेवलप किया हुआ है या जो भी सॉफ्टवेयर है काम कर रहा है उसको मज़ीद बेहतर बनाए, ना कि आपके डाटा को ब्रीच करें या उसको मिस यूज़ करें। सो जो अच्छी कंपनीज़ हैं या जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो कभी भी मिस यूज़ नहीं करते। मिस यूज़ डाटा तभी होता है जब आपके वीक पासवर्ड्स होते हैं, आपकी प्राइवेट पॉलिसीज़ वीक होती हैं, या आप अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों के साथ अपना डाटा शेयर करते हैं जो इनिशियली इस काबिल ही नहीं होते कि वो आपकी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकें। सो ट्राई नॉट टू शेयर योर डाटा विद एवरी
Tom, Dick and Harry. This is a proverb. I'm not specifically mentioning any Tom, Dick और Harry, but this is a proverb. So it means कि भाई आपने अपनी जो sensitive information है वो आप हर किसी से share नहीं कर सकते. बहुत sensitive information है तो keep it in a hard drive, जो कि सिर्फ जो है आपकी रसाई में हो, या जिन लोगों को आप ट्रस्ट करते हैं सिर्फ उनकी रसाई में हो, ना कि हर दूसरे तीसरे बंदे की रसाई में वो sensitive information हो. Shazeen, thank you so much for joining and watching. So this is another thing कि भाई we are in need of legal and policy frameworks which can only be approved and designed by the government and the organizations जो कि इन frameworks पे work करती हैं, और इसी तरीके से आपका जो डाटा है, पर्सनल डाटा खास तौर पे, वो सेफ हो सकता है. अच्छा, देन जो है बट देन अब पिछले दिनों में जो फायर वॉल और ये सारे सिलसिले रहे हैं वो भी इसी वजह से रहे हैं कि जो डाटा है वो सेफ हो सके, कि किसी किस्म की ब्रीच ना हो सके. तो आपका डाटा आपके पास ही महफूज रहे, या अब जो है इफ़ द गवर्नमेंट इज़ इन्वॉल्व तो उनके पास जो है सेफ रहे, एंड इट्स नॉट ईजिली ट्रांसमिटेड हियर एंड देयर और किसी किस्म की लीक हो. अच्छा, देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, व्हेन वी टॉक अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज, वी नीड टू एम्पावर पीपल थ्रू एजुकेशन. और ये एम्पावरमेंट जो है तभी आएगी जब डिजिटली आप अपने आप को जो है एजुकेट करें, और उसमें जो है चाहे आप ख़ुद जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाएं. बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको डिजिटली लिटरेसी प्रोग्राम्स होते हैं, या ये डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं जो आपको टीच करते हैं कि भी आपने अपना जो डाटा है वो किस तरह शेयर करना है, या किस तरह प्रिजर्व करना है, या वो कौन से एथिक्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी की मद में आ जाते हैं. सो आप अगर उनकी फाउंडेशंस पढ़ें या स्टडी करें, या इवन अगर आप जो है गूगल पे भी चले जाएं तो उधर भी आपको बहुत से ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि भाई आपने अपना डाटा इस तरह सेव करना है, या आपने जो है अगर से आप एज डाटा एनालिस्ट भी काम कर रहे हैं, या आप एज सिक्योरिटी डाटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है और किस तरीके से आप अपना जो डाटा है उसको सेव कर सकते हैं. सो टुडेज़ सेशन इट वाज ऑल अबाउट कि किस तरीके से आप इस कल्चर को अवॉइड कर सकते हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा इन होता जा रहा है, ये जो है लीक वीडियो कल्चर. सो इससे आप अपने आप को ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आई हैव शेयर विद यू कि आप अपना डाटा प्रोटेक्ट करें, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हर एक बंदी के साथ शेयर ना करें. यू डोंट नो स्पेशली ऑन दीज सोशल प्लेटफॉर्म्स कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है. So always keep your data safe with yourself in a hard drive, in a hard storage, जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास हो, या आपके जो है उन करीबी लोगों के साथ हो जिनका आपको पता है कि वो आपकी डाटा, वो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करेंगे. बाकी जो यानी लीक कल्चर है, दैट इज़ इट्स अ शैम कि इस तरीके से जो है लोगों के साथ हो रहा है, एंड इट्स नॉट गुड. कॉज इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो शायद इंडिविजुअल पे खुद ना हो, बट फैमिलीज़ पे बहुत ज़्यादा होता है. इंडिविजुअल पे होता है इन द सेंस कि इंडिविजुअल हैज़ टू गो थ्रू मैनी ट्रॉमास और डिप्रेशन और एंजाइटी, और भी बहुत से सिनेरियोज हो जाते हैं. एंड देन इट ऑल डिपेंड्स कि इंडिविजुअल जो है मेंटली तौर पे कितना जो है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देयर आर सर्टेन पीपल या सर्टेन जो हमारे बच्चे हैं उनकी एज चूँकि इतनी ज़्यादा नहीं होती है, एंड देन गलती हर एक से हो सकती है. बच्चे आर सेट टू बी बच्चास क्योंकि दे कांट डू थिंग्स एज एडल्ट्स डू. एडल्ट्स आर मैच्योर, इसलिए दे कैन सेव themselves from doing such blunders. But when it comes to a child की मेंटेलिटी और मेंटल लेवल इतना नहीं होता कि वो अपने आप को प्रिवेंट कर सके ऐसी चीज़ों से. बट देन इट डज़ नॉट मीन कि अगर उनसे गलती हो गई है तो उनको ट्रोल किया जाए, उनको जो है गुस्सा किया जाए, उनकी जो पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दें, क्योंकि दे स्टिल हैव अ लाइफ अहेड. सो ऐसे बच्चे जो कि अगर गलती कर देते हैं, ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उन्होंने क्यों किया, किस प्रेशर में किया, क्योंकि एवरी चाइल्ड हैज़ अ रीज़न for doing certain things,
एंड डीप डाउन एज अ पेरेंट भी आपको पता होता है कि भाई आपके बच्चे ने अगर कोई कदम लिया है तो उसमें आपकी पेरेंटिंग कहाँ पर इट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. सो बच्चों को ब्लेम करने से पहले एज अ पेरेंट अपने आप को ट्रेस करने की कोशिश करें व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट यू आर. एंड येस, अगर जो है इफ़ यू हैव डन एवरीथिंग एंड स्टिल द चाइल्ड डज इट, then the child needs counseling. So this is all what I wanted to share, and this is, you know, क्योंकि this topic is wide और इसमें काफ़ी intricacies हैं, and there are many departments जो interrelated है इस एक topic के साथ. So I'll try to, you know, cover those topics आहिस्ता आहिस्ता in due course of time. Or in the meantime, do let me know what do you think about today's session. Was today's session clear to you? Okay, thank you so much for your emojis. I can see these emojis coming my way. Thank you so much for them. And if I was unable to answer any question, you can always, you know, let me know in the comment box. और आप मुझे बता सकते हैं कि भाई if there was any question जो कि मैंने आपको answer नहीं किया, तो I'll answer them in due course of time. Inshallah, if not today, maybe tomorrow, day after tomorrow, but I will answer. और इन द मीन टाइम अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक को डिस्कस करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सो आई कैन, यू नो, डिस्कस दैट टॉपिक. और इफ़ देयर इज एनीवन हु वुड लाइक टू कम लाइव ऑन द कैमरा, तो आई कैन टेक देम लाइव एज वेल. And then if there's no one who's interested in coming, I can, you know, just bid everyone bye bye, and I can go and drink जोहर जो शानदार. So जो मेरा जो है नाक है वो खुल सके और मेरा बंद गला थोड़ा और खुल जाए. So I'll be you know, healthy and healthy to come live again on Monday and do another session with you. So I'll bid bye bye to everyone. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दवाओं में मुझे भी याद रखिएगा. और आज तो देखें इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, कल रात से बारिश लगी हुई है. So now it's getting cold and I'm wearing a sweater as well because मौसम चेंज हो गया है. उसामा अब्बासी, वालेकुम अस्सलाम. उसामा अब्बासी, I was just going offline. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अब जब मेरा सेशन अपलोड हो जाए तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. So that's all. Inshallah, I'll see you on Monday at 7 p.m. Till then, Allah Hafiz.